नमस्कार दोस्तों, अंशु घुमक्कड़ की डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी यूरोप। आप मेरे साथ यूरोप के 9 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ये हमारा वीज़ा एंड पासपोर्ट हमने बेंगलोर से कतर एयरलाइंस की फ़्लाइट ली थी टू वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये जो आप पानी देख रहे हैं ये है गल्फ़ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ़। और ये पूरा रेत है, रेगिस्तान है, पूरी रेत है, रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान का नाम है खोर अल अदायद। ये हमारी फ़्लाइट कतर एयरवेज़ की थी, तो दोहा में हमारा लेओवर था और फिर दोहा से वियना की फ़्लाइट थी। तो ये पूरे रेगिस्तान, और ये आप देख रहे हैं रेत, और वहाँ हवाएं खूब तेज़ चलती हैं मिडिल ईस्ट में। तो हवाओं से रेत उड़कर ये खूबसूरत डिज़ाइंस बनती हैं वहाँ पर। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। पानी, समुद्र क्या कहूँ, पर्शियन गल्फ़ और रेत के बीच सुंदर डिज़ाइंस। ये दोहा का एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। कतर काफ़ी समृद्ध देश है पेट्रोल की वजह से। ये दोहा एयरपोर्ट की एक तस्वीर। ये जो मैं बता रही थी कि रेत से सुंदर डिज़ाइंस बनती हैं, हवाएं जो है वो रेत उड़ाकर खूबसूरत डिज़ाइंस बना देती हैं। ये भी कुदरत का एक अद्भुत नज़ारा है। ये अब हम यूरोप पहुंच रहे हैं तो हरियाली दिखने लगी है मिडिल ईस्ट से यूरोप की ओर, और यूरोप पहुंचते ही, यूरोप में एंटर करते ही हरियाली दिखने लगती है। ये हम वियना पहुंच गए हैं अब, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अधिकांश यूरोपियन शहरों की तरह यहाँ भी ये छोटी छोटी खिड़कियों वाले 4 मंजिले घर होते हैं। खासकर पुराने वियना में। नया वियना जो नया बसा है उसमें ऊंची इमारतें भी दिखती हैं। ये मैं बता रही थी, जैसे ये 4 मंजिले घर हैं। ये यूरोप की ख़ास पहचान है, ज़्यादातर घर इसी तरीके से होते हैं। और ये देखिए, ये वियना की सड़कें, और इन सड़कों पर ऐसे ही घूमते टहलते हमने वियना का सिटी टूर किया था, और जिसमें गाइड ने पूरे शहर के बारे में हमें बताया था। तो अब जो आप अगली आवाज़ सुनेंगे वो गाइड की होगी, और आप वियना शहर good and a cheap option to live. So those flats are not very big, so they're pretty small, but they are very, very cheap, and that's the main idea to brand new within the last 10 years around the train station. So this is like the main train station of Vienna, and around the train station they built like hundreds of new flats and apartments and offices. So it's an office building around there, it's shopping area. So this is downtown. Almost the whole district number 1 is pedestrian area, pedestrian zone. So just one road is open for the traffic, for the buses, and this is the ring. And this was built in 1760 as the first school here of Vienna, the first public school of Vienna, and it's still today one public. No, it's not public school nowadays. It's a private school, that is the diplomatic academy, and but during the time of the Empress Maria Theresa came then the Second Republic. Yeah, here it is Schwarzenberg Square, where we are now driving along. This is one of the largest squares here of Vienna, and all the buildings here around. On the left-hand side there is beautiful white building. This is the French embassy, and then in front of us you see then on the right and on the left-hand side
uh, the Palace of Industry here, Parliament. So this architect was studying in Greece, so that's the reason why it looks like a Greek temple, and it was also the idea to have a neo-Greek building, a neo-Greek temple here. Yeah, building in front of us. This is the of justice and power and might. Yeah, in front of us the building with the cupola. So this is one more time the museum, one more palace after the other one. On the right hand side, this building is the popular theater of Vienna, the Volkstheater. Vienna is full of theaters. And another building on our right hand side, this is called complex here of museums. So today the whole Imperial Palace is having around 20 museums, which means that there is always the question, all around 1900 modern style art, Art Nouveau, and the building on the left hand side, this is out. So it's no wheel which is just rushing around. This wheel is moving so slowly that it takes 15 minutes to make one whole turn around. And the Williams Church, and this was built for the 50th year of government of the Emperor Franz Joseph. On the right hand side, this beautiful Jubileums Church, and now we come over the river Danube. So now you can see the Danube, which is at the moment not really the blue Danube, but maybe a little bit more green color. But this is the main river Danube, which is running around 380 kilometers through Austrian territory. And in the middle of the river there is the island of the Danube. So this is like 20 kilometers of island here in between the Danube and the new Danube, because then we are coming over to the new Danube. So this is like the second river here along the Danube on the right and the left hand side. So now you can see like the new Danube. So this is normally very clean, the new Danube, for swimming. At the moment it's also very dirty, but normally this is the area where people are coming for swimming. So in front of us you can already see the new part of the city of the Danube, the city of the United Nations, and the city of the Congress Center. So the highest building on the left hand side, the DC Tower, was built about 10 years ago by a French architect. So today it is the highest building of Austria, and one building which is like located in front of us at the United Nations. So they built a brand new area, a brand new city, the city of the Danube, and the city which is nowadays like the modern part of Vienna, with thousands of new flats here and shopping areas, office buildings, schools. So this is a brand new part of the city. 50 years ago there was nothing around here. It was only green, so no houses around, only green, and the river of the channel of the if you look now towards the right hand side, there are also now to be seen the Vienna woods. So the big forest, the big woods which is surrounding the whole city of Vienna is the Vienna woods. It is 4 times bigger than the whole city of Vienna. And it's like small hills, and they are from north of the city, from north to west to the southern part. And the city of Vienna is about 400. Das War Ministerium. Now
different kinds. Ministerials are inside, and if you look on the left hand side on the roof, there is this very huge double eagle. Look on the left hand side, the big, it's all the main sites. And here along the front of us, you can see the palaces here belonging to the Prince Schwarzenberg. Vienna is full of palaces. So we do have here in Vienna one palace next to the other one, and most of the palaces were belonging before to any royal families or nobles or aristocratical families, princes. And nowadays they are all museums or palaces which you could rent or outside the center. And before it was directly passing through the center, but then Vienna was having many floodings during the last centuries, and this was the reason why 150 concerts. So every day they had like different kinds of concerts taking place here, and on Saturday and Sunday people could come here to dance the Viennese waltz. So now we are back at the place, Russian soldier and the fountain, which is showing our water running system, the drinking water of Vienna. And if you look now to your right hand side, you see part of the palace Schwarzenberg. So now it's a little bit under construction, this palace, and another palace here. ये हम आ पहुँचे हैं बेल्वेडेर पैलेस। इसे यहाँ के क्राउन प्रिंस यूजीन ने बनवाया था। कहते हैं यूजीन ने शादी नहीं की थी और वो अकेला ही रहता था, लेकिन फिर भी उसने 8 महल वियना में बनवाए, और ये कुछ काल्पनिक पात्र उसके दिमाग में जो थे, स्त्रियों को उसने पक्षी, शेर, इन मुद्राओं के साथ बनवाया उनकी मूर्तियाँ। ये बेल्वेडेर पैलेस है। पीछे की ओर लोअर टाउन वियना का दिख रहा है। ये पैलेस के अंदर, बेल्वेडेर पैलेस के अंदर नक्काशी देखिए, कलाकृतियाँ देखिए। ये हम पैलेस के अंदर, ये मैं जैसा कह रही थी, एक शेर की आकृति, पक्षी की आकृति के तरह औरतों की मूर्तियाँ। ये बेल्वेडेर पैलेस का पीछे का हिस्सा है। इसमें पीछे की तरफ गार्डन्स हैं, और ये देखिए, ये जो मैं गार्डन कह रही थी वो गार्डन, वहाँ पर पीछे एक लेक भी है। ये हम आ पहुँचे हैं श्रानब्रुन पैलेस। ये वियना का सबसे बड़ा पैलेस है, और ये वहाँ की रानी मारिया टेरेसा ने बनवाया था। मारिया टेरेसा को ऑस्ट्रिया में लोग राष्ट्र माता कहते हैं, मदर ऑफ द नेशन। बहुत पॉपुलर क्वीन वो थी हैम्बर्ग डायनेस्टी की, और उन्होंने 40 सालों तक ऑस्ट्रिया पर राज किया था। तो वो काफ़ी लोकप्रिय रानी थी। ये उनकी समर कैपिटल थी। जैसे ब्रिटेन की रानी की स्कॉटलैंड में समर कैपिटल हुआ करती थी, तो मारिया टेरेसा ने अपने शहर में, ऑस्ट्रिया में केवल 30 किलोमीटर दूर दूसरी एक समर कैपिटल अपनी बनवाई। ब्रिटेन की डायनेस्टी को देख कर कि उनकी समर कैपिटल होती है, तो इसीलिए मारिया टेरेसा ने अपने मेन महल जो था उससे केवल 30 किलोमीटर दूर ये दूसरा श्रानब्रुन पैलेस बनवाया। ये बहुत शानदार पैलेस है, और यहाँ पर ज़्यादातर संगीत के कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं। ऑस्ट्रिया मोज़ार्ट और बीथोवन की कर्मस्थली रही है। वहाँ पर बीथोवन और मोज़ार्ट ने बहुत काम किया है, और ऑस्ट्रिया में संगीत को बहुत ज़्यादा, कला और संगीत का बहुत ज़्यादा इसी पैलेस के अंदर का था। और ये अब हम आ पहुँचे हैं मार्केट। ज़रा हिंदी गाना सुनिए।
ये हमारा लंच। ऑस्ट्रिया जिस दिन हम गए थे, वियना जिस दिन हम घूम रहे थे, उस दिन वहाँ पर यूरोप की LGBTQ कम्युनिटी की एक परेड निकल रही थी। इस परेड में LGBTQ कम्युनिटी के सारे यूरोप के देश के यूरोपीय देशों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। वियना में उनकी ये एक मार्च था, या परेड कह लीजिए, या प्रदर्शन कह लीजिए। ये अलग अलग देशों के लोग थे, और इसमें मतलब आप देख सकते हैं पुरुष जो है वो कई पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहने हुए हैं, परेड में शामिल हुए। कई स्त्रियां बहुत ही कम कपड़ों में हम कह सकते हैं जिनको, लेकिन इसके बावजूद कोई यहाँ पर वल्गैरिटी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई भी एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव नहीं। आप देख सकते हैं सब पूरा ये LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं। और यूरोप में LGBTQ को मान्यता मिली हुई है। इवन नीदरलैंड्स में तो समलैंगिक शादी, सेम जेंडर शादी, नीदरलैंड पहला देश था जिसने इसको मान्यता दी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस बारे में खुलकर बात करते हैं। हमारे देश में जैसे ये सब बातें लुकी छुपी हुई पर्दे में होती हैं, विदेशों में ऐसा नहीं है। इसको कोई एक टैबू की तरह नहीं देखता। और लोग अपने जेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा जेंडर बाइस्ड नहीं होते। उनका कहना होता है कि हम इंसान हैं, एंड पोस्टर भी वो लोग ऐसे ही लेके चलते हैं कि वी ईट जेंडर इन आवर ब्रेकफास्ट। और ये जो आप ये पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ओपेरा हाउस है, वियना का ओपेरा हाउस है। ये वियना की सड़कों पर परेड कह लीजिए, मार्च कह लीजिए, प्रदर्शन कह लीजिए, ये और संगीत की धुन पर आप इसको देखिए। सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर ये अच्छी लगी कि लोग बिल्कुल खुलकर जीते हैं। कोई सोशल टैबू नहीं होता कि लोग ये नहीं सोचते कि अरे दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इस बारे में। ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचते, और अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने में विश्वास रखते हैं। देशों के ये जो बसेस आ रही हैं, या ये ओपन ट्रक्स हैं, ये अलग अलग देशों की हैं मेरे ख्याल से। और अलग अलग देशों के जो ये LGBTQ कम्युनिटी होती है, उनके अलग अलग देशों के प्रदर्शनकारी हैं या सदस्य हैं। संगीत पर झूमते हुए सारे लोग।
से हम अगले देश हंगरी चलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। कितने लोग हैं, देखिए कितनी बसें हैं पीछे तक। नीचे अलग अलग देशों के झंडे लिए हुए, बैनर लिए हुए। हाँ, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा। फोटो ये भी लड़का है, लड़कियों को कपड़े पहने हैं। ये हम शाम को एक गांव में गए थे। वियना का एक गांव है जहाँ पर वाइन बनती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में चलेंगे हंगरी और वहाँ का देखेंगे खूबसूरत शहर बुडापेस्ट। थैंक यू।